justice in India. Though the concept of reservation was adopted by Sahu Maharaj in 1902, the British government introduced it in Madras Presidency only in 1921. It has introduced communal GO in which provisions for reservation were made: 44% for non-Brahmins, 16% for Brahmins, 16% for Muslims, 16% for Anglo-Indians or Christians, and 8% for scheduled castes. But the fruits of reservation were denied to Muslims in independent India. Now, some state governments made some provisions to give reservation to them, but it is not enough. We should fight for the rightful share of our community. Not only conceded reservation to the Muslims, it provided the separate electorate a right to elect their own representatives with their own votes through the communal award. But it was snatched by the Pune Pact in 1932. The time has come to fight back our rights. We have to sensitize our people the importance of political power. In India, if Dalits and Muslims come together, then nobody can form a government at the center without our support. In India, if Dalits and Muslims come together, then nobody can form a government at the center without our support. I invite all the politically sensitive people who believe in democracy to attain this goal. Thank you very much for this opportunity. Thank you, Mr. Thor Tirumavalan, Member of Parliament. That was a very crisp presentation on social justice in Indian context. Next, we would have a resolution to be read out by Muhammad Sheikh Ansari, Secretary, Tamil Nadu, Popular Front of India. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parliamentary scrutiny of defense intelligence expenditure needed. The Social Justice Conference calls upon the central government to make or amend such laws to make the parliamentary scrutiny of defense and intelligence expenditure mandatory. The country is spending more around 1,64,425 crores for defense. In 2009, there was 21% increase in defense spending, and it is estimated that by 2012, the country would have spent 2,60,000 crores for arms purchase alone. It is commonplace now that a major part of the defense expenditure is spent on kickbacks, commissions and bribes. Of late, there have been many cases of the military men engaged in land grab and involved in corrupt practices. There are also allegations about the nexus between armed personnel and armed dealers. It has always been a great source of controversy in India. It is now well known that the defense purchases have been done without proper synchronization, and there is a lot of waste and corruption. Scrutiny of the defense expenditure is hampered because of the exaggerated notions of national security, and most often people in charge of defense do not like parliamentary oversight lest many closed. It is unusual that people's representatives get no opportunity to discuss the state of affairs in the armed forces. Likewise, there is a lot of opacity in the functioning of the intelligence services, their budget and the political and social views. The Parliament does not have any opportunity to question the efficiency and usefulness of the intelligence agencies, as they also take refuge behind the curtain of national security. We have many instances of the top bureaucrats of the intelligence agencies working hand in glove with the
Hindutva politicians and spreading canards about Muslims, Dalits and tribals. Hence, SJC is of the opinion that new scrutiny mechanism have to be developed for parliamentary scrutiny of the defense and intelligence expenditure, and necessary laws are to be legislated to that effect. Thank you. शुक्रिया मोहम्मद शेख अंसारी साहब जो तमिलनाडु पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। अब हमारे सामने जमहूरियत में नुमाइंदगी किस तरह कायम कर सकते हैं इस उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे अब्दुल रशीद अगवान, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी। We are now going to hear Mr. Abdul Rashid Agwan, Secretary of Social Democratic Party of India. He will make a presentation on representative democracy. Mr. Abdul Rashid Agwan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, रामलीला मैदान में पिछले कई दिनों से नए भारत की तकदीर लिखने का काम चल रहा है। करप्शन के खिलाफ यहाँ कॉन्फ्रेंसेस हुई, रैलियां हुई, लेकिन करप्शन का जो असल बुनियाद है, जो इकोनॉमिक करप्शन की बात कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि इकोनॉमिक करप्शन बुनियाद है पॉलिटिकल करप्शन का, और पॉलिटिकल करप्शन आता है सोशल करप्शन से। हमें खुशी है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो बुनियादी खराबी है करप्शन की और इनजस्टिस की, उस पर जोर देने के लिए सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज की। मुबारकबाद देते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत का मतलब यह है कि यहाँ का हर शहरी बराबर है। जमहूरियत बगैर बराबरी के और बगैर इंसाफ के कायम नहीं रह सकती। लेकिन हम सब जानते हैं, अभी यहाँ मंच पे भी ये बातें आई है कि हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है वो बीमार हो चुकी है, उसे कुछ बीमारियां लग गई हैं। उसको ठीक करने के लिए सुधार की बातें हो रही है, इलेक्शन रिफॉर्म की बातें हो रही है, पॉलिटिकल रिफॉर्म की बातें हो रही है। इलेक्शन रिफॉर्म में ये बात आ रही है कि राइट टू रिकॉल, यानी चुने हुए नुमाइंदों को वापस बुलाने का हक आवाम को मिले। राइट टू रिजेक्ट, यानी अगर जो लिस्ट दी गई है उसमें से किसी नुमाइंदे को आप पसंद नहीं करते हैं तो उसको आप न चुने, पूरी लिस्ट को आप रिजेक्ट कर दें। या चुनाव में जो खर्च होता है उस पर कैसे पाबंदी लगाई जाए, या ईवीएम मशीन से जो धांधलियां शुरू हो गई है उसे कैसे रोका जाए, या इसी तरह की और बातें तो हो रही है। लेकिन जो बीमारी हमारे इलेक्शन सिस्टम को हो चुकी है, उस बीमारी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मूवमेंट जो मुल्क में चल रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म के, वो कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी उस तवज्जो नहीं दे रहा है। इस मौके को जो मुझे मिला है उसके जरिए से मैं एक खास बात यहां कहना चाहता हूं, वो ये कि हमारे इलेक्शन सिस्टम जो है उसको आज बदलने की जरूरत है। जमहूरियत का सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि जमहूरियत में क्या अक़लियतें, क्या वहां के कमजोर तबके खुश हैं, और हमें मालूम है कि वो खुश नहीं हैं। और जस्टिस की बुनियाद या जस्टिस देने का सबसे बड़ा निज़ाम जो हो सकता है किसी भी जगह पर, वो होता है पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इलेक्शन बेस्ड है। हम चुनाव करते हैं, चुनाव में अपने नुमाइंदे भेजते हैं और चुनाव के जरिए से हम जिनसे नाराज हैं उनको बदलते हैं। लेकिन पिछले 64 साल से जो चुनाव भारत में हो रहे हैं उसका अगर हम नक्शा खींचे तो यहाँ के कमजोर तबकों की नुमाइंदगी यहाँ की पार्लियामेंट में, यहाँ की असेंबलियों में, यहाँ के ऐवानों में नहीं हो रही है। मिसाल के तौर पर हम देखें उत्तर प्रदेश में दलितों का हाल। उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां पर भारत में सबसे ज्यादा दलित आबादी है, यानी 22% दलित वहां रहते हैं। शुरू में दलित कांग्रेस के साथ थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी पार्टी बीएसपी के रूप में बनाए और आज वहां बीएसपी के रूप में हुकूमत कर रहे हैं।
इस पार्टी को बनाने की क्या वजूहत थी। अगर इस पर गौर करें तो हम देखेंगे कि 1951 से लगा के 1984 तक, यानी सन 84 में मायावती जी पहली बार बिजनौर से चुनाव लड़ी थी, इस पीरियड को हम देख रहे हैं सन 51 से सन 84 तक, तो कांग्रेस कमोबेश यूपी में राज करती रही, लेकिन वहां 22% यानी नुमाइंदे उनके असेंबली में जाने के बावजूद कैबिनेट में जो जगह मिली थी उनको, वो 9% मिलती रही है। वहां कांग्रेस का फार्मूला यह था राज करने का यूपी में 12 ब्राह्मण, 12 ठाकुर, 3 दलित, 2 मुसलमान, बाकी अन्य। यानी इस फार्मूले के तहत कई सालों तक उत्तर प्रदेश में राज होता रहा। 67 और 68 में उसने और भी उनका हमें बहुत पूरी नुमाइंदगी नहीं मिली। इन सब का असर उत्तर प्रदेश में यह हुआ कि दलितों ने अपने आप को सियासी तौर पर लामबंद किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, और वहां हम देखते हैं कि एक दलित बेस्ड पार्टी ने वहां पर हुकूमत हासिल की। लेकिन आज वहां की बीएसपी भी बहुजन के बजाय सर्वजन की बातें करना उसके लिए जरूरी हो गया है, सोशल इंजीनियरिंग की बातें करना उसके लिए जरूरी हो गया है, और दलितों के अलावा उन्हें ब्राह्मण वोट की भी आज जरूरत पड़ रही है। और ये एक हकीकत है इस मुल्क की। दलितों को यूपी के अलावा और सूबों में उनकी इतनी बड़ी आबादी नहीं है, लिहाजा उन्हें कहीं न कहीं दूसरी बड़ी पार्टियों पर मुनहसिर रहना पड़ता है, उन पर डिपेंड करना पड़ता है, और जो वो हक चाहते हैं इस मुल्क में जमहूरी तरीके से अपने चुने हुए नुमाइंदों के जरिए से वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। एक और हम देखें ग्रुप को, वो है मुसलमानों का। मुसलमान मुल्क में करीब 13% से ऊपर उनकी आबादी मानी जाती है ऑफिशियली, लेकिन पहले चुनाव से लगा के 98 के चुनाव तक पार्लियामेंट में जो मुस्लिम नुमाइंदे पहुंचते रहे हैं उनकी तादाद 5.6% रही है ऑन द एवरेज, यानी 5.5% उनकी नुमाइंदगी हुई है, जबकि उन्हें 11, 12, 13% की नुमाइंदगी उनकी होनी चाहिए थी। असेंबलियों में भी अगर हम देखें तो मुस्लिम इंडिया ने एक डेटा जमा करके बताया कि सन 98 में 385 असेंबलियां 10 सूबों की असेंबलियों में उन्होंने देखा था, तो मालूम है कि 4.8% यानी 4.5% मुस्लिम नुमाइंदे ही जो है वो असेंबलियों में मौजूद थे, यानी अपनी आबादी से काफी कम तादाद उनकी मौजूद थी। तो एक तरफ दलित जिनके लिए सीटें रिजर्व हैं, तो सीटें रिजर्व होने की वजह से उनकी तादाद तो आ रही है आबादी के लिहाज से, लेकिन कैबिनेट में उनको जगह नहीं मिल पा रही है, और इस तरह से उनकी नुमाइंदगी के वजन को कम किया जाता है। और दूसरी तरफ मुसलमान है जिनके पास जो है रिजर्वेशन नहीं है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, वो अपने नुमाइंदे चुनने के लिए जो है मजबूर हैं, और उनके जरिए से जो उनकी आबादी के लिहाज से काफी कम उनकी सीटें आ रही है। जो हाल पॉलिटिकल पार्टियां करती है, अभी हाल ही में यूपी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, कांग्रेस ने 226 कैंडिडेट अभी ऐलान किए हैं, इसमें दलितों की तादाद 54 है, मुसलमान नुमाइंदे कांग्रेस की तरफ से 23 हैं। इससे मालूम होता है कि क्या वेटेज, क्या वजन इनको दिया जा रहा है। जो कांग्रेस औरतों के रिजर्वेशन की बात करती है, 226 में से उसने 1 दर्जन से भी कम औरतों को अभी तक जो है कैंडिडेट बनाया है। ये हालात हमारे सामने हैं। जो इलेक्शन की पूरी प्रोसेस है, जो तरीका है, उसमें थोड़े से भी अगर वोटर को आप मुतासिर कर ले जाएं, चाहे जज्बाती एतबार से, चाहे डराकर, चाहे खरीद कर, तो आप इलेक्शन को बहुत बड़ी हद तक जो है मुतासिर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यहां पर 2% की और 3% की स्विंग से हुकूमतें जो है हट जाती है और बदल जाती है। हमारे सामने मिसाल है वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 34 साल पुराने लेफ्ट के राज को खत्म कर दिया, और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री वहां पर हुई है। लेकिन अगर देखा जाए वोट की टर्म में, तो लेफ्ट फ्रंट को 41% वोट वहां मिले थे असेंबली चुनाव में, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 39% वोट मिले थे, यानी लेफ्ट से भी 2% कम उसे वोट मिले थे। इसके बावजूद वहां पर जो है उसको सीटें मिलने में 62% सीटें जो है तृणमूल कांग्रेस को मिली, यानी 294 असेंबली सीट्स में से 184 सीटें जो है तृणमूल कांग्रेस को मिली है, और वो सिर्फ जो है 2.9% यानी
वोट स्विंग की वजह से ऐसा मुमकिन हो सका। तो बहुत हल्के से फ्लक्चुएशन से यहां पर राज बदला जा सकता है, किसी भी जमी जमाई सरकार को खत्म किया जा सकता है। बिहार में भी यही हुआ। बिहार में जो है नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी के बीच में जेडीयू और बीजेपी के बीच में फ्रंट बना था। इस फ्रंट को भी 39% वोट मिले थे, लेकिन सीटें मिली उनको 85%, यानी वो सिर्फ 40% लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन सीटें उनके पास 85% थी। यूपीए की जो सरकार इस वक्त चल रही है उसके पास, उसमें कांग्रेस को सिर्फ 21.4% वोट मिले थे, यानी मुल्क में जो 71 करोड़ 40 लाख जो वोटर्स हैं उसमें से सिर्फ जो है उनको 21.4% वोट मिले थे, और उसके नतीजे में आज देखते हैं कि वो राज कर रही है। तो 20% 30% के आसपास जिनके पास वोट आ जाते हैं वो सरकारें बना रहे हैं आजकल। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा हाल देखें आप, जो छोटी पार्टी है उनका क्या हाल है। बीएसपी ने केरल में और तमिलनाडु में, बंगाल में, पांडिचेरी में, असम में जो अभी चुनाव हुए थे असेंबली के 471 कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन वो कहीं नहीं जीत पाई। वेस्ट बंगाल में 68 सीटें ऐसी थी जहां पर शेड्यूल कास्ट रिजर्व थी, वहां बीएसपी ने 2,87,000 वोट हासिल किए, लेकिन वो सीट नहीं जीत पाई। केरल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने 82 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1,62,417 वोट हासिल किए थे, लेकिन एक भी सीट उसे नहीं मिली। ये दिखाता है कि जनता अगर किसी पार्टी के पीछे है भी, लेकिन उसके परसेंटेज ऑफ वोट जो है उतना नहीं बन पाता है, तो वो जो है असेंबलियों में नहीं पहुंच पाते हैं, पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाते हैं। इसी प्रोसेस में हम देखें तो बहुत सी बड़ी जो पुरानी पार्टियां थी वो यहां से खत्म हो गई, और बहुत सी पार्टियां जो है वो काम तो कर रही हैं, लेकिन उनकी नुमाइंदगी पूरी नहीं हो पाती है। इंडियन मुस्लिम लीग पूरे मुल्क में उसकी कई सीटें आती थी, कई असेंबलियों में वो रहती थी, लेकिन आज वो सिर्फ केरल के कुछ जिलों तक महदूद हो गई हैं। मुस्लिम मजलिस जो असेंबली की करीब 13-14 सीटें यूपी में जीतती थी, वो आज गायब है और एक तारीख का हिस्सा बन चुकी है। असम में एयूडीएफ की कामयाबी को हम बहुत इस वक्त देखते हैं कि बहुत अच्छी कामयाब रही, लेकिन वहां देखें हम तो वहां पर मुसलमानों की आबादी 31% है, लेकिन एयूडीएफ को जो सीटें मिली है वो 14% मिली है। इसी तरह से जो छोटी पार्टियां हैं जो जाटों का नुमाइंदगी करती हैं या सिखों की नुमाइंदगी करती हैं, या इलाकाई जो बात जैसे तेलंगाना के मूवमेंट को चला रही हैं, या माहौलियात के सिलसिले में कुछ लोग काम कर रहे हैं, इन सब की कोई सियासी आवाज नहीं बन पाती है, क्योंकि इनके पास वही 30% 25% वोट की ताकत नहीं है। इस लिहाजा इनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि अंबेडकर जैसे शख्स जिन्होंने एक भारत का संविधान लिखा था, वे जब कांग्रेस से नाराज हुए अपनी सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर से चुनाव लड़ा 1952 में, तो अपने ही पीए से वो हार गए, अपने ही पीए से वो हार गए। इसके बाद उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी भी कोई खास इस मुल्क में नहीं कर पाई। और इस तरह से अंबेडकर साहब का जो सपना था दलितों को एक सियासी आज़ादी दिलाने का, सियासी बराबरी दिलाने का, समाजी बराबरी दिलाने का, वो खुद अपनी आंखों से उस सपने को नहीं देख सके। ये जो चीजें मैंने बताई है कि एक तरफ वो पार्टियां जिनके पास 10% 15% वोट हासिल हो जाते हैं या 20% वोट हासिल हो जाते हैं, लेकिन वो सरकारें नहीं बना पाती है और या असेंबली में नहीं आ पाती हैं। दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो कि सिर्फ 2% और 3% की स्विंग के साथ अगर उनके पास 20-22% वोट मौजूद हैं तो वो सरकारें बना लेती है, बल्कि लैंडस्लाइड विक्ट्री जैसे कहता है मीडिया जैसे कहता है वो हासिल कर लेती है। ये करिश्मा होता है हमारे यहां जो चल रहा है इस वक्त जो इलेक्शन का निजाम है, उस वजह से इस निजाम की वजह से कभी छोटी पार्टियां सरकार में या असेंबली में नहीं आ सकती। इसके बदलने का जो निजाम है पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जमहूरियत के 2 तरीके चल रहे हैं। एक वो तरीका है जो हमारे मुल्क में चल रहा है, एक वो तरीका है जो दूसरे बहुत से मुल्कों में चल रहा है। दुनिया में इस वक्त 123 मुल्क ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कायम है। उसमें से 88 कंट्रीज में यानी मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज वहां पर जो सिस्टम चल रहा है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी जिसको जितने वोट उसको उतनी सीट, जिसके वोट हैं
उसको उतनी सीटें मिलनी चाहिए और इसी के जरिए से आप एक सही किस्म की नुमाइंदा जो है जमहूरियत को कायम कर सकते हैं। अगर ये कानून भारत में लाया जाए, जो पूरे दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में, अच्छे मुल्कों में, जिन्हें डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है, यूरोप में, इंग्लैंड को छोड़ के सारे कंट्रीज में, इजराइल में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और इससे 88 मुल्कों के अंदर जो लोकतंत्र का तरीका है, इलेक्शन का तरीका है, वो वही है कि जिसको जितने वोट मिलते हैं उसको ऐवान में उतनी ही सीटें मिल जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में और ऐसे 45 मुल्कों में जो इलेक्शन का सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर वह 2 पार्टी का रूल चलता है, 2 फ्रंट का रूल चलता है और बाकी छोटे जो पार्टी के लोग हैं जो दूसरे ख्यालात के लेके आते हैं, जो तब्दीली की बात करते हैं, वो तब्दीली की बात करने वालों के लिए वहां कोई मौका नहीं है। और दरअसल जमहूरियत जो है एक स्टेटस को का नाम हो जाता है, एक जमहूरियत का नाम हो जाता है, जमहूरियत नहीं रह पाती है। तो हमारे मुल्क में भी जब हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो एक ऐसे निजाम को लाने की जरूरत है जिससे इस मुल्क के रहने वाले सभी लोगों को नुमाइंदगी ऐवानों में मिल सके। इस बात को यकीन दहानी कराया जाए और कानून को बदला जाए, उस कानून को बदलकर इस मुल्क में एक सही और सच्ची जमहूरियत कायम की जाए। शुक्रिया। शुक्रिया साहब, जनाब अब्दुल रशीद अगवान साहब, जो जमहूरियत में हम किस तरह नुमाइंदगी कायम कर सकते हैं इस उन्वान पर बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे थे। अब मैं जनाब डॉक्टर कौमी कन्वीनर हैं ऑल इंडिया सेकुलर फोरम के, आप हमारे सामने अपने बम धमाकों के मामले, मुजरिम और कुर्बानी के बकरे। नेक्स्ट वी कॉल अपॉन डॉक्टर सुरेश खैरनार, who is the national convener for All India Secular Forum. He will talk on bomb blast, culprits and scapegoats. Mr. Dr. Suresh Khairnar. साथियों, सबसे पहले मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सामाजिक न्याय ये विषय लेकर इस देश की राजधानी में ये इतना बड़ा जलसा करने का जो साहस किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। क्योंकि आज हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय के सिलसिले में सबसे ज्यादा अन्याय वाला अगर कोई कुनबा है तो वो मुसलमानों का है। दलित हजारों सालों से उपेक्षित है, लेकिन दलितों के माथे पर आतंकवादी का या देशद्रोह का सिक्का नहीं है, वो मुसलमानों के माथे पर है। हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति भवन में बैठने वाला अंसारी हो या दिल्ली के फुटपाथ पे केला बेचने वाला कोई सलीम या यूसुफ हो, वो हर एक को हिकारत से देखा जाता है। हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार यूपीए है और ये सेकुलर सरकार मानी जाती है, और मुझे मालूम है कि यहां पर आईबी, सीबीआई, एलआईडी, सीआईडी उनका अपना काम है, वो जरूर करने के लिए आए हुए हैं, फोटोग्राफ भी ले रहे हैं, शूटिंग भी कर रहे हैं, अच्छे से करे और ये भारत सरकार को बताए कि असली मामला क्या है। अगर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी तो आतंकवाद का मुकाबला हिंदुस्तान में 1000 साल होगा तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बम धमाका नहीं होता है, दूसरे मिनट में वहां का जो भी पुलिस का मुखिया होता है तुरंत बोलता है फिदाइन, हुजी, इंडियन मुजाहिदीन और क्या क्या। मेरे जैसे एक सामान्य, मैंने इन्वेस्टिगेशन का कोई स्टडी किया नहीं है, मैं एक ऑर्डिनरी आपके जैसा नागरिक हूं, लेकिन एक मेरे माथे में हमेशा एक कि अगर रामलीला मैदान में कोई धमाका हुआ तो मेरे मन में आएगा कि इसका मोटिव क्या हो सकता है, और मोटिव के बारे में मुझे उकसाया गया नांदेड़, मालेगांव, नागपुर, आजमगढ़, बटला हाउस, मक्का मस्जिद, भटकल, सब जगहों पर मैं खुद निजी तौर पे जा जाके
मैंने तहकीकात करने की कोशिश की है और आईबी से लेके लोकल पुलिस के एसपी से लेके सबसे मैंने डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन किया और बोला है कि आप लोग हैदराबाद की पुलिस इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग का वायलेशन कर रहे, आप इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो। मालेगांव में अगर 40 मुसलमान शबे बारात में मारे जाते हैं, जिस शबे बारात में 1 लाख मुसलमान इकट्ठा होते हैं, एक भी हिंदू वहां होता नहीं है। और ये 1857 से ये सिलसिला चल रहा है। ये वो मुसलमान है मालेगांव के जो 1857 में यहां से गदर के बाद में चल के निकले थे और मालेगांव पहुंचे थे, ये वो है। और वहां ये रहने वाले मुसलमान, उनका जो इलाका है, उस इलाके को या आजकल हिंदुस्तान के हर ऐसे इलाकों को पाकिस्तान बोला जाता है। मुसलमान रहने वाला इलाका अलग, हिंदू रहने वाला इलाका अलग। और इसके लिए कई नामी गिरामी लोगों के अखबारों में नाम आते हैं कि फलाने को ये नहीं मिला, फलाने को वो नहीं मिला। लेकिन ये जो शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन जो हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक मामला है। मैंने निजी तौर पे जो बम धमाकों की जो तहकीकातें की है, सबसे पहला 6 अप्रैल 2006 का नांदेड़ पाटबंधारे नगर, नांदेड़ का धमाका जब हुआ तो मैं 7 अप्रैल को नांदेड़ पहुंचा हूं और नांदेड़ की पुलिस बार बार बोले जा रही, फटाकों का मराठी में वो जो क्रैकर्स होते हैं उनको फटाके बोले जाते हैं, उनका ब्लास्ट हुआ है बोले, क्योंकि वो घर किसी हिंदू का घर था। और खाली हिंदू का नहीं, घर के ऊपर भगवा झंडा फहरा रहा था। घर के जो चौखट होती है उसके ऊपर रामचंद्र का सबसे बड़ा धनुष्यबाण लिया हुआ फोटो था और उसके घर के आंगन में आरएसएस की शाखा चलती थी। ये लक्ष्मण राजकोंडावार का घर था। ये 50 सालों से आरएसएस का कर्मी रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का रिटायर्ड इंजीनियर रहा है। और इसका लड़का नरेश राजकोंडावार और हिमांशु पांडे, राजीव गांधी की जो हालत हुई थी शरीर की, मुझे वहां उस समय के पत्रकारों ने बताया था, दिल्ली में जो दफनाए गए या जो जलाए गए राजीव गांधी, वो राजीव गांधी थे नहीं, खाली उनके जूते थे, क्योंकि इतना उनके शरीर का हाल बुरा हो गया था। वैसा ये बच्चों का हुआ था। इसके बावजूद नांदेड़ का एसपी बोलता है कि फटाकों का ब्लास्ट है, क्रैकर्स का ब्लास्ट है। मैंने उनको कहा है कि अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे कह रहे हैं कि लातूर के भूकंप की याद आई हमको और हम सब लोग नांदेड़ के रास्ते पे आ गए थे, इतना बड़ा धमाका हुआ था। और मैंने कहा फटाके अगर फूटते हैं तो एक के पीछे एक फूटते हैं, एक साथ ब्लास्ट होने का क्या मतलब है? आप आईपीएस ऑफिसर है, आपने ट्रेनिंग ली है, मैं लेमैन हूं, लेकिन ये एक साधारण सी बात है। और यही फटाके वाला असली मुसलमान होता तो आपने उसके पूरे खानदान को 10 पीढ़ी तक आपने खोद डाला होता। मुसलमान के बारे में एक न्याय, हिंदू के बारे में दूसरा न्याय, चल क्या रहा है आप लोगों का? और उस समय विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और आज ही जो गृह मंत्री बन के बैठे हैं आर पाटिल, वही उस समय भी गृह मंत्री थे। आज तक इन दोनों ने नांदेड़ जाने की जहमत उठाई नहीं है। विलासराव देशमुख मराठवाड़ा के ही नागरिक है और उस समय यहां के जो गृह मंत्री थे वो भी उधर के ही थे, कपड़े बदलने में बहुत माहिर थे, सिनेमा वालों से भी ज्यादा, शिवाजीराव पाटिल, शिवराज पाटिल। और ये रिपोर्ट लेकर मैं आपके शहर में आया था। सीपीआई के दफ्तर में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। 6 या 5 भी पत्रकार नहीं थे और कितने ने छापा क्या किया मुझे मालूम नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद हिंदुस्तान का दूसरा आरएसएस का इतना बड़ा संगीन मामला था जो बम बनाने का कारखाना था। वो अगर उस समय चेक किया गया होता तो समझौता एक्सप्रेस से लेके मक्का मस्जिद से लेके हिंदुस्तान के ऐसे कई वाकये हैं जो रुक गए होते। लेकिन
महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, और दोनों ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया नहीं है। उनका क्या पॉलिटिक्स है वो जाने, लेकिन हिंदुस्तान के आतंकवाद के बारे में अगर ये सचमुच ईमानदार है तो इन बातों का कॉग्निजेंस लिया जाना होना चाहिए था। अब कोई दिग्विजय या कोई कुछ हम लोगों के दुनिया भर की रिपोर्ट के बाद उनके कंठ थोड़े फूटने लगे हैं। ठीक है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मैं स्वागत करता हूं चिदम्बरम साहब को भी थोड़ा सा आजकल बीच बीच में सैफरन और ये वो शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं, उसमें भी उनका क्या पॉलिटिक्स है वो जाने। क्योंकि मेरे जैसा सामान्य आदमी, मेरी बिल्कुल गलतफहमी नहीं कि मैं दुनिया का बहुत होशियार आदमी हूं, एवरेज आदमी हूं। जब मेरे जैसे आदमी के दिमाग में ये सवाल आते हैं तो ये तो बहुत माहिर और बड़े बड़े लोग हैं, कितना बड़ा पॉलिटिक्स करते हैं, देश की कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट ये लोग चलाते हैं, इन्हें कैसे नहीं आता है ये मेरी समझ में नहीं आता है। कई बार जब मीडिया वाले, मुझे नहीं लगता यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया आया है, क्योंकि ये जिन लोगों का आयोजन है उसमें बैठे हुए चेहरे जो मैं देख रहा हूं, दिल्ली के कुछ पत्रकारों को मैं जानता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे नहीं दिख रहा है। और इस कार्यक्रम का क्या कवरेज होगा, मेरे मन में क्वेश्चन मार्क है। कल मैं दिल्ली में हूं नहीं दिल्ली के अखबार देखने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात की क्या खबर आएगी, क्योंकि मीडिया का भी किस ढंग से हिंदूकरण हो गया है वो एक अलग विषय, कभी विस्तार से बोला जाएगा। आज की तारीख में हिंदुस्तान में मीडिया, जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेट सब कुछ पोलराइज हो चुका है, और इस कारण इन सब बातों को लेकर जो न्याय होना चाहिए, क्योंकि ये विषय सामाजिक न्याय का है। सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ रिजर्वेशन, आर्थिक बातें नहीं है। मैं 15 तारीख को कलकत्ता में नया जमाना नाम के अखबार वाले जो है सीपीएम के एक एक्स मिनिस्टर साहब, उनके अखबार का मैं स्पीकर वहां कार्यक्रम का अतिथि था, माइनॉरिटीज को लेके। मैंने बोला 34 साल के बाद आपको माइनॉरिटीज के बारे में दर्द हो रहा है, इतने साल बैठे थे क्या कर रहे थे पता नहीं। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी आपके इलाके में पड़ती है, और अब आप अपोजिशन में आए तो आपको ये सूझ रहा है। लेकिन मैंने वहां जताया, 6 एक्स सीपीएम के मिनिस्टर्स बैठे थे पीछे, मैंने कहा कि पहले मुसलमान आज जिंदा कैसे रहेगा ये पहले सोचिए, और उसके बाद उसके रिजर्वेशन की बात कीजिए। क्योंकि आज की तारीख में अमीर मुसलमान हो या गरीब मुसलमान हो, वो इतिहास के क्रम में इतना इनसिक्योर कभी नहीं था जितना आज है। वो अपने बाल बच्चों को अपने घर में रख के दिल्ली में मेरे जैसा आराम से माइक के सामने आके भाषण नहीं दे सकता, इतने आराम से वो दुनिया में कहीं भी घूम नहीं सकता, क्योंकि सतत उसके मन में भय बना रहता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, कब मेरा बच्चा उठा लिया जाएगा। और पर्टिकुलरली अगर वो बच्चा कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, कंप्यूटर अगर वो बच्चा टेक्निकल कोई बहुत महारत हासिल किया हुआ है, ये उसका गुनाह हो गया है आजकल। मुसलमान पढ़ता लिखता नहीं है, जाहिल है, लेकिन वो पढ़ने लिखने के बाद में पढ़े लिखे मुसलमान हिंदुस्तान की जेलों में हजारों हजारों बच्चे, अभी मैं शाम को अहमदाबाद जा रहा हूं उसी बात को लेकर, कितने बच्चे अहमदाबाद की जेलों में इनोसेंट बच्चे पड़े हुए हैं। वो पंड्या जो मारा गया उसका बाप विट्ठल भाई पंड्या मेरे जैसे सामान्य आदमी को मेमोरेंडम देता है कि मेरे बेटे को नरेंद्र मोदी ने मारा है, बाप बोल रहा है बेटे के बारे में। मैंने बोला कि विट्ठल भाई मैं कुछ भी नहीं हूं हिंदुस्तान का, मैं क्या कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा यहां एक मुकुल सिन्हा नाम का थोड़ा अच्छा वकील है, मेरा दोस्त है, मैं उसको हाथ जोड़ के बोल सकता कि भाई तुम इसकी केस फुकट में चलाओ, खाली आप वकालतनामा साइन करो तो नरेंद्र मोदी को घसीटा जाएगा, और आपकी बहू को भी बोलो, उसकी जो पत्नी जो बची है, आप दोनों ससुर और बहू मिलके आप मुकदमा करो, विट्ठल भाई का देहांत हो गया है। बाप बोल रहा है, मैं नहीं, मुकुल सिन्हा नहीं, बाप खुद बोल रहा है। और उस पंड्या के मारने के नाम पर कितने बच्चे सड़ रहे जेलों में, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके घरों में। मैं उन सब बच्चों के घरों में गया हूं, देखा हूं, कोई फ्रिज का मैकेनिक है,
कोई छोटा मोटा कुछ तो भी अपना मामूली सा जो प्राइवेट कंपनी का कुछ रिप्रेजेंटेटिव होता वो है। ये कोई बच्चे साउंड बहुत आर्थिक परिस्थिति के अच्छे बच्चे नहीं है जो साबरमती की जेल में और दुनिया भर के गुजरात की जेलों में और हिंदुस्तान के और जेलों में और मेरे अपने स्टेट में महाराष्ट्र में ये मालेगांव में पहले ही झटके में 115 लोग पकड़े गए थे। मेरे झगड़ा होने के बावजूद एक भी हिंदू पकड़ा नहीं गया था। और अभी एक हफ्ता पहले मुझे एसएमएस आया, कांग्रेचुलेशन। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं इस कांग्रेचुलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बेगुनाह बच्चों को इतने दिन जेलों में रखने की बात, और अभी वो बच्चे अगर बेल पे छूटे तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। ये महाराष्ट्र सरकार का सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि इन बच्चों के माथे पे ये जो मारा गया है कलंक आतंकवादी का, ये कैसे पोंछा जाएगा? क्योंकि मक्का मस्जिद के ब्लास्ट वाले मां बाप, जब मैं वहां पर एक मीटिंग में गया था सियासत में, वो मुझे मिले, रोते रोते बता रहे थे कि हम लोगों के इस साल की ईद में हमें कोई रिश्तेदार बुलाता नहीं है, हमें कोई ईद मुबारकबाद नहीं दे रहा है, हम लोग एक्स कम्युनिकेट हो चुके हैं सोसाइटी से। ये हालात हैदराबाद के मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में पकड़े गए मुसलमान बच्चों के मां बाप की थी। तो सामाजिक बहिष्कार हिंदू का तो छोड़ दीजिए, हिंदू तो वैसे भी मुसलमान के नोटिस कितना लेता है मेरे सामने एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मुसलमान भी उससे कन्नी काट रहा था या काट रहे हैं, क्योंकि मुसलमान को डर है कि मैं अगर इससे नाता रखूंगा, इससे हेलो दुआ सलाम करूंगा तो मेरा भी क्या होगा। इस ढंग से ये जो देश में होते जा रहा है, और मैंने जितनी तहकीकातें की है, इन सब तहकीकातों में मैंने एक भी मुसलमान पाया नहीं है। ये मैं आज दिल्ली के रामलीला मैदान के इस मंच से डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि इन केसेस में एक भी मुसलमान शामिल नहीं है। और आसिमानंद के कन्फेशन के बाद मुझे दुख है, जो बात मैं 10 साल पहले से बोल रहा था, वो एक आतंकवादी जब कन्फेस करता है तो मुझे राजदेव सरदेसाई से लेकर दुनिया भर के कांग्रेचुलेशन करते, मैंने कहा नहीं, मैं कांग्रेचुलेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरी बात पहले ही दिन अगर एक्सेप्ट की गई होती तो इतने बच्चे जेलों में नहीं सड़े रहते, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में जो खाई जो बड़ी है, ये खाई शायद उतनी नहीं बढ़ती। मसला खाली कुछ बच्चे जेलों में जाने का नहीं है, हिंदू मुसलमानों का मामला पहले ही बहुत संगीन है कई सालों से, और ऊपर से ये सब मामलों के कारण ये खाई जो बड़ी है, ये खाई पाटना इतना आसान काम नहीं है। आसिमानंद कितना भी कन्फेस करे और कुछ भी करे, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है, दुख है। जो बात मैं कह रहा था वो बात न मानते हुए आसिमानंद के कन्फेशन के बाद में अगर भारत सरकार ये कर रही है तो मुझे कोई खास खुशी नहीं है। और मुझे लगता कि भारत सरकार को ये पहले से मालूम था। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि भारत सरकार इनोसेंट है। कितनी बड़ी यंत्रणा इस मुल्क में, हमारे जैसे मामूली सामाजिक कार्यकर्ता की एक एक बात की खबर रहती है। हम कहां जाते हैं, कहां बैठते हैं, कहां खाते पीते हैं, ये सब अगर उनको मालूम है तो इतने बड़े जब हादसे होते इन बारे में मालूम नहीं रहता। 1 जून 2006 के नागपुर के हादसे के बारे में अभी वो नागपुर के अंदर पहुंच गए हैं, अभी वो यहां से निकल चुके हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहे रामलीला मैदान में और यहां अनाउंसमेंट किया जा रहा है, वैसे नागपुर के अखबारों में लगातार 1 हफ्ते से नागपुर के हेडक्वार्टर को उड़ाने वाली बातचीत की खबरें पुलिस सूत्रों के द्वारा आ रही थी। और 1 जून 2006 को सोकल आतंकवादी हमला जो हुआ है, माफ करेंगे थोड़ा 5 मिनट अगर मुझे देंगे तो मैं इस विषय को शायद न्याय दे पाऊंगा। अन्यथा आप लोग इतना खर्चा करा के मुझे बुलाए हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ फायदा होगा इसका, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। खाली सामाजिक न्याय बोलने से काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा रहना, उसका अस्तित्व सम्मान से रहना, वो भी इस देश का नागरिक है, ये इस्टेब्लिश होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्याय वगैरह की बात आप बाद में कीजिएगा, क्योंकि जिस ढंग से आतंकवाद का मामला कॉम्प्लिकेटेड होते गया है और हिंदुस्तान की सरकार आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मालेगांव में दोनों के दोनों हिंदुओं के भी लोग जेलों में और मुसलमानों के भी जेलों में। मैं कहता हूं किसी एक को तो छोड़ दो, प्रज्ञा सिंह को छोड़ दो,
पुरोहित को छोड़ दो, ये बच्चों को रखा हुआ है, या फिर इन बच्चों को छोड़ो। अब दोनों को, राबी भी बेल पे, केस वापस नहीं लिया, बेलों पे छोड़ा है, और सीबीआई डंके की चोट पे बोलती है कि हम नहीं छोड़ेंगे। ये आसिम आनंद के स्टेटमेंट के बावजूद स्टेटमेंट है। क्या मामला क्या है? मजाक लगा रखा है आप इस देश के कानून का, इस देश की सब इंक्वायरी करने वाली मशीनरीज का और सब चीजों का आप एक तरह से माखौल उड़ा रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि क्या बनाना डेमोक्रेसी चल रही है? हम अपने आप को देश, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क के नागरिक बोलते हैं, और 18 करोड़ आबादी को अगर आप इस हालत में रखोगे तो ऐसा मुल्क कभी मुल्क नहीं रह सकता है। और 18 करोड़ लोगों को आतंकवादी की अगर आप कैटेगरी में डालोगे तो एनएसजी बना लो, आईबी तो ही पहले से, और दुनिया भर की कितनी भी सुरक्षा एजेंसी बना लो, उस मुल्क का कोई कुछ नहीं कर, क्योंकि 18 करोड़ लोग ईरान से लगभग 2 गुना हो जाते हैं। ईरान खुद एक मुल्क है 7.5 करोड़ का, पाकिस्तान से भी बड़ी आबादी है, दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट आबादी है। और इस आबादी को देश के दुश्मन के नाम पे, देशद्रोही के नाम पे अगर देखा जाएगा तो इस देश की सुरक्षा किसी मिलिट्री के थ्रू, किसी सीआरपीएफ के थ्रू, किसी बॉर्डर सिक्योरिटी के थ्रू, किसी लोकल पुलिस के थ्रू कभी नहीं हो पाएगी। मुल्क में रहने वाले हर जाति, समाज, धर्म के नागरिकों को जब तक ये महसूस नहीं होता कि ये हमारा मुल्क है, तब तक ये सब बातें बेमानी है। क्योंकि चिट्ठी आएगी, दूसरी चिट्ठी आने के पहले मैं दुआ करता हूं कि ये मामला देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इस ढंग से अगर भारत सरकार इन चीजों के बारे में अगर अब सही बहाने में अगर कार्रवाई करना चाहती है, करे। ये मैं इस बहाने में, क्योंकि कांग्रेस ने मुझे अभी अभी ऑफर दी है कि आप इतना सारा बोलते हुए घूम रहे हैं, नेट पे हमने आपके सब रिपोर्ट देखे, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शिविरों में आके ये बोलिए। और मैंने उनको कहा, कहने वालों को मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े नेता है, मैं साफ साफ बातें करूंगा। चलेगा तो आप बुलाइए, नहीं तो रहने दीजिए। मैं हर तरह के जलसे में जाने की तैयारी रखता हूं, लेकिन अपनी बात रखने के हिसाब से, न कि आपकी बात। इसलिए कांग्रेस ने भी क्या क्या खामियां, कांग्रेस ने भी क्या क्या गुनाह किए हैं, ये मैं गिनाऊंगा। भिंद्रनवाला से लेके, बाल ठाकरे से लेके, दुनिया भर के कौन कौन लोग कैसे पैदा किए, ये सब मैं रखूंगा। ये चलेगा आपको प्रभाकरण तक, तो आप मुझे बुलाइए कश्मीर तक, तो मैं जरूर आऊंगा कांग्रेस के भी मंच पे और बोलूंगा। क्योंकि मुझे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने के अलावा कुछ आता नहीं है। मैं कोई नेता नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा कोई लेखक नहीं हूं, बड़बोला आदमी हूं। और बोलने के लिए अगर कोई भी बुलाता है तो मैं आऊंगा, और आप लोगों के बीच में मैंने का जो कहना है वो कहूंगा। तो इन सब बातों को लेकर जो काम मैं लगभग भागलपुर दंगे के बाद से जो कर रहा हूं, आज 20, 21, 22 साल होने जा रहे हैं, 100 से ऊपर मेरी फैक्ट फाइंडिंग्स है। कुछ वेबसाइट में, कुछ आपको PUCL के इस पे मिल जाएंगी। इन सब चीजों को देखते, और परसों यहां पर गॉडसेज चिल्ड्रन नाम की किताब का विमोचन मेरे हाथ से होने जा रहा है गांधी पीस फाउंडेशन में 29 तारीख को। गॉडसेज चिल्ड्रन, ये सब जो जमात, हिंदुओं की जो आतंकवादियों के जो जमात है, इनको हम गॉडसेज चिल्ड्रन ये नाम से किताब एक लिखी गई है, उस किताब का विमोचन है 29 तारीख को। मैं आप लोगों को खुली दावत देता हूं कि उस दिन के 6 बजे गांधी पीस फाउंडेशन, दीनदयाल उनके नाम से जो मार्ग बना हुआ है उस पर है, ये ITO के पास में, उस दिन जरूर आइएगा। मैं आज अहमदाबाद जाकर वापस आ रहा हूं दिल्ली में उस किताब के विमोचन के लिए। उस किताब में ये सब बातें मौजूद है, और उस दिन मैं और विस्तार से बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ से उसका ओपनिंग होने के कारण मुझे समय मिलेगा। इस ढंग से चिट्ठी शायद वहां नहीं आएगी। तो आयोजकों को धन्यवाद कि आप लोगों ने चिट्ठी देने के बावजूद भी मुझे आगे बोलने दिया, और आप सब लोगों ने सुना है, इसलिए सबको धन्यवाद देकर मैं बैठता हूं। बम धमाकों के मुख्तलिफ मामलात की बाल की खाल निकालते हुए डॉक्टर सुरेश खन्नार साहब हमारे दरमियान में बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे थे। हमारे सामने एक और खुसूसी मेहमान एडवोकेट जफरियाब जिलानी साहब भी तशरीफ फरमा हैं, जो कन्वीनर हैं ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के। अब हमारे सामने खिताब करेंगे डॉक्टर MS जयप्रकाश, तारीखदां हैं, साबिक सदर शोबा DB कॉलेज कोल्लम केरला। आपका मौजू है समाजी इंसाफ और नाम निहाद समाजी मुफक्किरीन।
We would like to acknowledge the presence of Mr. Advocate Zafriab Jilani Saab, Convener All India Babri Masjid Action Committee. And moving on to the next speaker in today's seminar, Roots of Social Justice and the So-Called Socialist, by Professor M.S. Jayaprakash, Professor of History, Kerala. Respected Chair, distinguished guests on the dais, my beloved brother E.M. Abdur Rahman, and my brothers and sisters. It gives me much pleasure to be here in your midst on this auspicious occasion of the Conference on Social Justice. Before entering into the topic, I would like to express a few words on the significance of this conference. As we all know, this is Ram Leela ground in Delhi. But at present, what is happening or going on is a kind of a transformation from Ram Leela to Rahim Leela. That I feel so. So it gives me much pleasure to participate in this historic conference. Being a fan of Ravan, not Rama, I am closely associated with Rahim, and I salute before the organizers of this historic conference. The paper I would like to present is Social Justice and the So-Called Socialists, a study on the anti-reservation policy of the Indian ruling class. The backwards, the elites and the minority, they demanded measures for social justice through reservation, and the government adopted certain measures, implemented certain measures, but at the same time they tried to undermine all these measures. And that is the main theme of this paper, which I am going to present before you. Whenever there were oppressed classes and oppressors, there had occurred bloody revolutions aiming at social justice. France, Russia, China, South Africa, etc., are all glaring examples in these annals of history. However, India, where oppression has been so deep and wide, affecting at least 80% of the people, there hasn't been a single bloody revolution in the entire history of this subcontinent. And that is why we are mainly suffering from all these difficulties and troubles and social injustice. It doesn't mean that I prefer bloody revolution, but democratic revolution undertaken by Popular Front of India, and we can have full trust on them in fulfilling this historical mission. Even though we achieved independence, the slavery continued even after securing freedom from foreign powers. In fact, the traditionally oppressed majority found themselves having jumped from frying pan to fire. Still, we are depending on the ruling class for social justice. Though a bloody revolution was practically impossible in India at that time, a bloodless, intellectually and ideologically driven revolution was taking place in India under the influence of Islam, Christianity,
and the British rule. A traditional outcast, an untouchable. Once he embraced Islam, suddenly found himself liberated from the yoke to which he was inextricably tied by the inhuman caste system. In Kerala, a social revolution was initiated by the revolutionary saint Sri Narayana Guru, and he once said, "Britishers are our gurus," that is preceptors, "so we don't want to hear anything bad about them." That was the remark made by Sri Narayana Guru, the revolutionary saint of Kerala. Swami Vivekananda once called Kerala as lunatic asylum. It doesn't mean that our forefathers were suffering from mental disorder. No. The Manuvadis were suffering from mental disorder in Kerala. Not only in Kerala, everywhere in India, even today. So Manuvad and Manorog will go hand in hand. Let them go. We can go with Popular Front for the coming social revolution. The majority, consisting of Dalits, backward classes, now stand before the oppressors with their begging bowls. They are the victims of Brahmanical trickery as ever. In order to achieve true social justice, this backward Dalit forces must unite politically as one man without in any way getting carried away by the Brahmanical charm. As I have already mentioned, the government introduced a number of measures for social justice. In 1909, the Mendo-Morley reforms were introduced, but the Manuvadis were capable of undermining the same. We failed to enjoy the fruits of that reform under the Britishers. Then, the main agenda of Simon Commission, who came to India in 1928, was social justice. Since the majority of the population of India was untouchables, they needed special protection, and the Simon Commission wanted to take measures, remedial measures for this. The Manuvadis now got the support of some BCs and Dalits, and they raised the slogan against the Simon Commission, "Simon, go back." We were betrayed. So in 1909, betrayal. Again in 1928, betrayal. Now, we can raise the slogan, "Aryans, go back," against that slogan raised by the then Manuvadis. Again in 1930s, Round Table Conference, because of the influence, adopted measures for the special measures adopted for the representation of the Dalits, but that too was undermined by Mahatma Gandhi, and he declared a fast unto death against Ambedkar. Gandhiji has never ever protested this way, even against the Britishers during freedom struggle. So 1930s, that was also undermined. Then in 1936, it was when the share of power was demanded that Muhammad Ali Jinnah was stamped as communalist and a separatist, while in fact Jinnah was, although against division, Jinnah for the first time raised this issue when he was driven to the wall by the upper caste Hindutva forces. So that was the next stage of betrayal. Then the Kaka Kalekar Commission in 1953, that was also undermined by the Manuvadis. Then there was a long silence up to 1979, 26 years. No measure was adopted for social justice.
In 1999, Mandal Commission report was submitted, and that was submitted in 1980. Srimati Indira Gandhi did not take any action to implement the report and kept it in the shelf for 10 years. In the 90s, when the VP Singh government initiated positive measures for its implementation, there was a huge, violent backlash from the Brahminical reactionary forces. Even attempts for self-immolation were staged by the upper caste Nadak companies in order to force the government to stall the implementation process. And even in Mandal Commission report implementation, we can see the betrayal. Adequate representation was 52%, but Mandal was constrained to give only 27%. I am not going into the details. But Mandal Commission reservation, Mandal recommended reservation in all the departments and services of the government. But Government of India avoided a number of departments, and 27 was reduced into mere 5% reservation. That is what is going on at present. Because of our backwardness, we are not in a position to understand what is happening and what are the tricks played by these Manuwadis in this respect. So 27 reduced into 18 when several departments were avoided, then scientific institutions were avoided, thus it was reduced into 12, and creamy layer was imposed on it, and we are getting only 5% reservation. So now the million-dollar question is as to what is the contribution of these so-called spokesmen of merit. They have not so far able to devise a single technological know-how that is suitable to the native soil of India. That is what is going on in our country. So the solution is that we must elect our own leaders, our own government, our own Prime Minister and our own President. We must have our representatives in every constitutional and the institutions and bodies in proportion to our numerical strength. Then only the concept of social justice can be and will be realized. There is a saying in English, a friend in need is a friend indeed. And we have the popular friend here. Thank you. We thank Dr. M.S. Jayaprakash, who was speaking on the topic of social justice and the so-called socialist. Next, we would call upon Muhammad Javed, Secretary of Rajasthan, to read out a resolution. Mr. Muhammad Javed. Confiscate illegal assets and black money deposit inside and outside India. The Social Justice Conference of Popular Front of India use the Government of India to confiscate the illegal assets and black money deposits outside India. The recent disclosure for French government about 700 HSBC bank account reveal the widespread dumping of black money discretionary in different foreign banks by the legislature, executive, industrialist, and so on. In the light of 500 crores of black money deposit in Geneva, the government shall initiate discreet a step to locate and book the clubs who amassed huge fortune by means of gratification and other nullification modes. As party of the mission, the government shall continue judicial commission